numeric values. So today we will be seeing further how to work with the inputs using other class objects. So I will start with an example. So I will request all of you to get ready with your notes copies. Also be ready with your laptop so that you can create your programs and run along with me. So I will share the screen first. So this is the folder that we already have created with E drive my Java. I have already created my folder there. I am creating all my Java files inside this folder itself. तो यहाँ पे जो है we'll create a new text document. Let it be say PRV4 and extension name txt है इसका extension. मैं उसका extension को Java कर रहा हूँ. So now I have this prv4.java. I double click it. एडिटर विंडो आ गया है. ठीक. तो यहाँ पे हम जो है we are creating a public class prv4. So before creating the public class prv4, we need to import a package, this java.io package. So why are we importing java.io package? Because we are going to use input stream reader and buffered reader class. ठीक. तो इन दोनों को हमको यूज करना है. Input stream reader and buffer reader classes are defined inside java.io package. So in order to use these two classes, we are importing java.io package. So यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने लिखा है java.io.asterisk लिख दिया है. Asterisk means all the classes that are there in java.io, we can use them. But specifically अगर आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. जैसे आप अगर ऐसे लिखें कि input java.io.input stream reader एंड एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट आप यूज कर लें इंपोर्ट java.io.buffered reader. तो ये ज़्यादा बेटर होता है एक्चुअली. ये हम प्रोफेशनली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस टाइप से ही इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखा जाता है. वी जनरली अवॉइड यूजिंग द एस्टेरिस्क पार्ट बिकॉज java.io पैकेज में ना सिर्फ इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर क्लासेस हैं बल्कि बहुत सारे क्लासेस हैं. तो वो सभी इंपोर्ट हो जाते हैं. सो दैट might increase the size of the bytecode that you are writing, but फिर भी Java का ऑप्टिमाइजर जो है it optimizes the code. तो अगर बाई चांस जो है you want to do some shortcut से बहुत सारे क्लासेस आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप यूज करेंगे तो आप asterisk का यूज करें for importing. ठीक. So java.io.asterisk is actually importing all the classes that are present inside java.io package. ठीक. So we are going to import java.io package because we are going to use input stream reader and buffered reader classes. I hope till now things are very clear. Package के बारे में कोई डाउट है क्या किसी को? Any questions? No, sir. ठीक है, चलिए. So now we'll start creating the class, a public class. तो prg4 नाम से मैं इसको सेव किया हूँ तो पब्लिक क्लास prg4 ही बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि पब्लिक कीवर्ड अगर यूज कर लिया है क्लास के साथ तो उसी नाम से आपको जावा फाइल को भी सेव करना पड़ेगा. So inside public class prg4 I am creating public static void main. There is a main method string array. ठीक.
अब इसमें से हमको जो है इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर क्लासेस को यूज करना है। तो हम इसमें इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। So in order to create an object of input stream reader, I have to mention the class name. That is, the class name is input stream reader. Then after a space, I have to mention the object name. ठीक, तो हम जब इंस्टेंस बनाते हैं इसको बोलते हैं हम क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, हम क्या करते हैं कि स्पेसिफाई द क्लास नेम and then we specify the object. So in this way, ठीक, क्लास नेम के बाद हम स्पेस लगा के ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं और इक्वल टू साइन लगाते हैं। वी असाइन इट विद द कंस्ट्रक्टर, वी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। तो क्लास अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट, ठीक। सो we are calling the constructor of the class to create an instance of the class. So what is an object? Object is a variable declared using the class name. ठीक है, एक तरीके का वेरिएबल है। तो ISR यहाँ पे क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया that is declared using the class name. क्लास नेम हमारा क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो वी हैव सीन अर्लियर दैट क्लास का मतलब क्या होता है, पहले लेक्चर में देखा था। क्लास का मतलब है उसमें कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो क्लास है उसमें भी कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे। तो मुझे अगर उनको यूज करना है तो मुझे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ISR नाउ बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का जब ये ऑब्जेक्ट बन गया है तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ये सभी जो है ISR में हमको मिलने लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ISR ऐसे डिक्लेयर करने से नहीं चलेगा, उसको हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस बनाने का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस बनाना का मतलब होता है we have to assign it to a memory location. Okay, in order to exist in computer systems, any variable has to be given a memory location. जब तक आप उसको मेमोरी लोकेशन नहीं देंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है या वेरिएबल जो है वो जो वर्चुअली रहेगा लेकिन एक्चुअली नहीं बनेगा। So in order to actually create an object or a variable, we have to give it an instance. We have to provide it with a memory location. So ISR को एक मेमोरी लोकेशन मुझे देना पड़ेगा, तभी जाके ये ISR जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। ये जो वर्चुअली रहेगा मतलब ISR को यूज करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे, मेमोरी मेंबर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए कि ISR के मेंबर्स को मैं एक्सेस कर सकूं तो आई हैव टू मेक इट एन इंस्टेंस। इसको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा मुझे। किस क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, सेम क्लास का जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ही मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। In order to create an instance, we have to use the new operator. So new operator will be used to create an instance. After the new operator, we have to mention the class name. We have to mention the class name. So input stream reader is the class name. Along with the class name, I have to use brackets, parenthesis. अब what is this? पैरेंथेसिस जब लग जाता है किसी भी आइडेंटिफायर के साथ तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फंक्शन या मेथड। जावा में इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का मेथड बना देते हैं हम। अब मेथड क्या होता है, अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्लास का नेम है
और उसी नेम से अगर मेथड बनता है